conditions of the leave rules, and I think they are kind enough. They must be interested also regarding the leaves, because as far as we are working in the system, we also wants that how much and which type of leave is admissible to us. So we'll take the sessions on leave rules. Just let me share the slide. It is visible to all. Yes, yes, visible. So we'll proceed for CCS Leave Rule 72. So before proceeding, I convey my heartfelt thanks to course director S.K. Das ji, and my senior Mahesh Kurikar sir, and also NISM Baramati for considering me as a resource person. So as said by course director, that session would be means both sided. It will be conversable. So if any issues are there in between the sessions, you can raise your issues. And I have also prepared some MCQs, multiple choice options questions, and that will ask at the last of the session. Before that, you can raise your queries, or if you are writing and raising at the last, that also would be better, as you feel better. Maybe there may be a chance that your queries cannot be, if it is not be answered as of right now. So I will note it down and will reply later also, because many a times in leave rules, somebody is means one anyone is taking as a hypothetical questions also. So if certain circumstances comes, so if I am not able to answer, I will note it down and will get back to you shortly. So we'll go ahead. So what is leave rules? So to whom these leave rules apply? First, we also should know to whom it is to be applicable. Sorry. These leave rules shall be applicable to central civil services post in connection with the affairs of the union. It is not applicable to all. It is applicable to the central civil services, those who are covered under CCS. It means it will be not applicable to some of the organizations. For those, they have their own set of rules. जैसे अभी आप बोल सकते हैं कि लीव रूल्स विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम विथ एक्सेप्शन दोज हु हैव देयर ऑन रूल्स किनके पास होते हैं, जस्ट लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज है, दे आर नॉट कवर्ड विद द सीसीएस लीव रूल्स. आईएएस आईपीएस जो भी होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. सो दोज एम्प्लॉइज विल नॉट बी कवर्ड अंडर सीसीएस लीव रूल 72. रेलवे के पास अपना जीआरपी होता है, जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर. सो आवर लीव रूल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल टू रेलवेज एम्प्लॉय. I also worked in railway for almost 2 years, so I know that they have their own set of rules, जीआरपी जिसको बोलते हैं. सो दैट they are following जीआरपी, they is not following सीसीएस लीव रूल्स. कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो भी आपका contractual employees हैं, like in your organization there many may be on contractual obligations, contractual staff है, outsourcing staff है, YP, SRF, JRF. there are several employees are there जो कि कैजुअल बेसिस में रहते हैं, एमटीएस भी रहते हैं. तो बहुत सारे जो कि सीसीएस सेंट्रल सर्विसेज में कवर नहीं है, तो उनपे सीसीएस लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट पीपीटी मोड में डाल दीजिए उसको. ये नहीं दिख रहा क्या? ना दिख रहा है, लेकिन पीपीटी मोड में नहीं है. वो थोड़ा जो कप वाला सिंबल को थोड़ा तो कर दीजिए. हमारे इधर तो दिख रहा. नहीं, आपका कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है हमको सारे. स्क्रीन जैसा है, पीपीटी नहीं है. मैं दोबारा शेयर करता हूँ. हाँ, पीपीटी मोड में नहीं है. अभी आया क्या? पीपीटी में नहीं है, ऐसे आया. उसको थोड़ा क्लिक कीजिए, क्लिक नहीं हो रहा है शायद. अभी हो रहा क्या?
है ना, वो तो वही कंप्यूटर वाला ये में है, आपका मुझे स्क्रीन जैसा स्क्रीन में है जैसे। मुझे तो यहाँ पूरा फुल स्क्रीन पे दिख रहा। नहीं, ठीक है, वो तो लेकिन अभी भी आप फर्स्ट स्लाइड में है ना। मैं दोबारा ज्वाइन करूं मीटिंग? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए कीजिए। प्लीज प्लीज, मैं अभी लीव करके फिर ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा कुछ टेक्निकल होगा सर। और कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशंस में थोड़ा जिन थोड़ा कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज थोड़ा के लिए। थोड़ा स्लो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लोग साउथ का है, थोड़ा हिंदी उनको डिफिकल्ट होगा। थोड़ा स्लो में चलिए, स्लो में, मतलब फास्ट ओके, नहीं। so for those category of staff, if there is some special provision under constitution, if such provision is made on those category also, these leaves will not be applicable. People on deputation from state government or others, स्टेट गवर्नमेंट से जब डेपुटेशन पे आते हैं तो डेपुटेशन पे क्या होता है कि फॉर द सर्टेन टाइम, जितना पीरियड के लिए डेपुटेशन पे आएंगे उस पीरियड के लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, एंड इन सच सर्टेन कंडीशंस फॉर दैट पीरियड लीव रूल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। उस पीरियड में जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं दैट विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, general conditions. What are the general conditions of leave? Simple thing, leave is not matter of right. सिंपल हम बोलते भी हैं कि कई बार ऐसा ऑफिस में बोलते हैं कि बॉस ऐसा बोल रहा, छुट्टी लेके चले जाएंगे, क्या करेगा, काम नहीं करेंगे। सो एनी टाइम यू जस्ट, यू ऑल प्लीज रिमेम्बर दैट लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। वो आपका अधिकार नहीं है। एट एनी टाइम यू कैन नॉट से दैट मैं लीव लेके चला जाऊंगा। सो एट एनी टाइम लीव कैन बी रिफ्यूज्ड। सो इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। अब जब अथॉरिटीज को, आपके इस्टेब्लिशमेंट को, डिपार्टमेंट को फील होगा that your presence is much more required in public interest, your leave can be denied. So it's a simple general condition that it should not be claimed as of right, may be refused, curtailed or revoked. In many times, normal cases में रिवोक रिफ्यूज नहीं होते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशन व्हेन ऑफिशियल एक्सीजेंसीज आर देयर, तो उस केस में आपका रिफ्यूज भी हो सकता है। कर्टेल्ड मीन्स इफ यू हैव आस्क्ड फॉर 10 days लीव, आपका अथॉरिटी बोलेगा कि नहीं 10 days नहीं है, यू टेक 5 days लीव, उसके बाद आ जाओ, काम कर लो, देखेंगे आगे, देखेंगे कहीं जरूरत पड़ेगा तो फिर लीव ले लेना, जस्ट लाइक ही कैन मैनेज, ही कैन से। सो आपका रिफ्यूज भी हो सकता है, कर्टेल भी हो सकता है, रिवोक भी हो सकता है, तीनों कंडीशंस। नॉट टू बी डिनाइड ड्यूरिंग लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। जब एम्प्लॉइज दे आर एवर 50 years, लास्ट 10 years बचा रहता है, तो इन सर्टन कंडीशंस, इन पीरियड्स में जनरली डिनाई नहीं करते हैं, कंसिडरिंग दैट कि हम लाइफ के उस फेज में होते हैं जहां पे आपको बहुत सारे सोशल फैमिलियर ऑब्लिगेशंस पूरे करने होते हैं, कंप्लाई करने होते हैं, तो कंसिडरिंग सच एस्पेक्ट्स इन नॉर्मल केस लीव आर नॉट डिनाइड, but official exigencies में at any time it can be denied. To be encouraged to take leave to freshen up. ये कभी कभी देखेगी होंगे कि समटाइम्स वी, इफ वी आर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो कभी काम करते करते बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, तो समटाइम्स अथॉरिटी भी बोलते हैं कि जाओ थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ, घूम फिर के आ जाओ। एंड यू मे बी रिमेम्बरिंग दैट इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इटसेल्फ दे आर गिविंग लीव। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोई आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उसको राज्य सरकार ने 1 महीने की छुट्टी पे भेज दिया। तो इन छुट्टी पे भेजने का सिर्फ ये पर्पस नहीं होता है कि आप काम से कटे हैं, काम से दूर रहे, काम नहीं करना है। समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू रिफ्रेश। कभी कभी जो दिल्ली के आसपास है, महीने में 2 बार 3 बार जाके शिमला मनाली घूमने चले जाते हैं, जस्ट नॉट फॉर घूमिंग, घूमने के लिए नहीं जाते वो। जब आप कंटिन्यूअसली महीने 2 महीने काम कर रहे हैं, आपका दिमाग ऑफिशियल चीजों से भरा हुआ है, बोझ आ गया, तो आप रिफ्रेश होने के लिए भी जाते हैं। तो दीज आर जनरल सर्टन कंडीशंस। काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर कैन नॉट ऑर्डिनरी बी अल्टर्ड। जो आप जिस प्रकार की छुट्टी के लिए, जिस काइंड ऑफ लीव के लिए अप्लाई किया है, नॉर्मली वो चेंज नहीं होते हैं, बट विद इन ए 1 month टाइम का रहता है कि अगर आपको चेंज करना है तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 month यू कैन
अल्टर वो आगे के स्लाइड्स में आपको हम बताएंगे। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव इज 5 years। मैक्सिमम पीरियड 5 years होता, 5 years के अगर उससे बियॉन्ड किसी का लीव है तो वो फिर मिनिस्टर लेवल पे चली जाती है। नॉर्मल केस में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दीज आर द जनरल कंडीशंस कवरिंग लीव्स। नेक्स्ट, सीजेज ऑन इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी। जब मेजर पेनल्टी लगती है तो ये सीज हो जाएगा, फॉरफिट हो जाती है। नेक्स्ट, रिकॉल टू ड्यूटी फ्रॉम लीव। सर्टेन कंडीशंस में आप जब लीव पे गए हुए हैं तो आपको वापस भी लीव पर से बुलाया जाता है, अगर इंडिया में है तो। और अगर आपको लीव पे, ओके, so if you are in within India and if you are somebody is asking to speak in English, so I will make in English, Hindi both. I will try to make completely in English, but somebody may also be interested in Hindi, so maybe I will try. Okay, thank you. So if your authority is recalling you from leave, so what will be applicable on you? Leave in India. If you are recalled in India on duty from the date government servant starts for the station's order. Suppose you proceeded on leave and your authority is asking to return from the leave. So once you have been ordered to return from the leave, from that point you will be on that point you will be on duty, and TA will be applicable for return journey. Leave salary will be applicable when you joins duty. And when the leave is outside India, when you are outside India and you have been called for the return from the leave, वो is as duty। जो जो भी आपका पीरियड है जर्नी का वो ड्यूटी में माना जाएगा। लीव सैलरी टिल ही ज्वाइंस ड्यूटी, व्हेन यू ज्वाइंस ड्यूटी दैट फॉर दैट पीरियड you will be paid leave salary। Free passage to India, it will be applicable on you। TA from place of landing to duty, wherever you are there as of now and you have been ordered to return to India, from from that point and to coming to your station, it will be a TA will be applicable। Refund of onward journey subject to conditions। Suppose you have proceeded on onward journey, so that also will be refunded under certain conditions। So next, what are the kinds of leave? There are two: common and standard। So common leave are earned leave, half pay leave, commuted leave, leave not due, extraordinary leave। So common leave, earned leave, you all must be knowing about the earned leave because you are earning by spending your duties in the office. Half pay leave, because if you are taking a leave separately, we will take one by one. Just I'm giving a brief intro of the leaves. So earned leave, that you are earning by doing your duty. Half pay leave, it will be applicable if you are taking, you will be paid half. Commuted leave, if you are commuting, half pay, so that will be commuted and you will be paid full, but your 2 half pay leave will be deducted। Leave not due, on certain condition, when government servant has not any balance of any leave at their account, in certain conditions leave not due is applicable, but due in under certain conditions and up to certain limits। Extraordinary leave, so extraordinary leave, excuse me, extraordinary leave also when leave is not there and still you have to proceed, you have to out of duty, that period will be taken as extraordinary leave। Sometimes we are also saying that leave without pay। What are situation based leaves? Maternity leave, child care leave, paternity leave, and study leave। Some more leaves also will be there, but that will not come under the definition of leave. That also we'll see in the next slides। So situation specific leaves are maternity leave, that is applicable for women staff, for giving birth, and also for adoption, and in other conditions also it is applicable। Child care leave, for taking care of your child। Paternity leave, it will be applicable for male employees। A study leave, it will be applicable for all, for the purpose of a study which is relevant to your job profile। So these are the certain kinds of leave। Next, the kinds of leave. Some kinds are leaves which are not specified as a leave,
Here it is mentioned casual leave. Casual leave is not a regular form of leave. This is not leave. That's why we are not including in the list of leave. But it is also one kind of leave when you can take restricted holiday also, because these two leaves are, and one another special casual leave will also be there. Next, you make it next. Compensatory off. Compensatory, what does compensatory means? So if somebody is working in the office, okay, somebody is saying bilingual, so no issue, we'll take up. So there are other kinds of leave is also there. Casual leave, you must be knowing casual leave. Restricted holidays. Restricted holidays is being circulated by the coordination committee of your city, and it is applicable for all of the employees. So you have to select two out of a list of restricted holidays. Compensatory off. Compensatory off, what does compensatory means? So compensatory means when somebody is working in the office in the holidays or Saturday, Sundays or any day, in generally it is off, and if you are working for that day, you can be given one holiday. That is compensatory. So for compensatory off, one separate slide will be there, and I will brief compensatory off also. But in general, you consider the compensatory leave if you are working on holiday. Just like suppose in we have seen in certain offices in that agar DG or DDG or some VIP officials are coming from headquarter, तो उस कंडीशंस में ऑफिस को खोल दिया जाता है। और ऑफिस को खोल दिया जाता है उस कंडीशंस में क्या है कि आप सबको ऑफिस आना पड़ता है छुट्टी के दिन भी, बट उसके लिए आपको एक दिन की ऑफ बाद में दी जाती है, एंड दैट लीव विल बी कंसिडर्ड एज ए कंपेंसेटरी ऑफ। इसको एक महीने के अंदर लेना पड़ता है, और जीएस के अप्रूवल के बाद हम एक महीने के बाद भी ले सकते हैं। एक महीने के अंदर कोई लिमिट नहीं रहती है, एक महीने के बाद दो लेना होता है। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर certain conditions, special casual leave is also being given. Special casual leave किन किन conditions में दी जाती है, and what are the other terms and conditions will be seen in the coming slides. Next, कैजुअल लीव क्या है? कैजुअल लीव नॉर्मली 8 days आपका अवेलेबल रहेगा नॉर्मल केस में, पूरे साल भर के लिए, एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए इट विल बी फॉर 12 days, 8 days CL एंड 4 days स्पेशल कैजुअल लीव। उस स्पेशल कैजुअल लीव के लिए भी आपको सर्टेन कॉज शो करना पड़ता है। सो फॉर नॉर्मल एम्प्लॉयज इट विल बी फॉर 8 days, एंड फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इट विल बी फॉर 12 days, not treated as absence from duty. When you are on CL, it will be treated on duty. CL ही एक ऐसा लीव है जिसको आप हाफ करके भी ले सकते हैं। हाफ पे लीव भी है, बट उसमें आपको उसमें सैलरी कट जाती है, बट CL इज सच टाइप ऑफ लीव व्हिच कैन बी क्लेम्ड हाफ डे ऑल्सो। लंच इज डिवाइडिंग लाइन। लंच से पहले का टाइम फर्स्ट हाफ होता है, लंच के बाद का टाइम सेकेंड हाफ होता है। इफ यू आर क्लेमिंग फर्स्ट हाफ CL इन फर्स्ट हाफ, देन यू विल हैव टू ज्वाइन बाय द लंच। जब लंच खत्म होता है तब ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप लंच के बाद वाले सेशन के लिए क्लेम करते हैं तो आपका लंच जब शुरू होती है उतना तक आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा। CL नॉर्मली एक बार में 5 days ही दी जाती है, 5 days से ज्यादा नहीं दी जाती है, बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस इट विल आल्सो बी सैंक्शन फॉर मोर देन 5 days। अगर हाँ, उसमें ये भी कंडीशंस है, जब अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी का हम नॉर्म्स देखते हैं, तो इफ सम एम्प्लॉइज आर कमिंग ऑफिस लेट और ही इज हैबिचुएटेड टू अटेंड द ऑफिस लेट, सो फॉर ईच हाफ एन आवर और मोर के लिए हम क्या है कि उसका हाफ डे CL काट लेते हैं। सो CL ओनली if you are attending the office late or you are coming office late, so only CL will be deducted, not other leaves. So CL के बारे में आप इतना समझ गया, CL is not a leave, सिंपल समझ लीजिए, CL is not form of a leave। 8 दिन नॉर्मल मिलेगा, फिजिकली डिफरेंटली एबल के लिए 12 days मिलेंगे, हाफ डे ले सकते। टूर के जब व्हेन यू आर ऑन टूर, आप टूर के दौरान भी कैजुअल लीव ले सकते हैं, और उसमें आपको DA उस पीरियड का नहीं मिलता है।
RH लिस्ट बाय गवर्नमेंट। आरएच क्या होते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी जो एवरी स्टेट एवरी सिटीज में होते हैं, वो एक लिस्ट सर्कुलेट करती है गेस्टेड हॉलीडेज के और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज के। गेस्टेड हॉलीडेज जो भी 17 रहेंगे सारे आप पे एप्लीकेबल होगा, बट इन द फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज यू हैव टू चूज टू आउट ऑफ गिवन लिस्ट। वो गवर्नमेंट जो देते हैं उसे आपको चुनना पड़ता है, और उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपेंसेटरी ऑफ। कंपेंसेटरी ऑफ क्या होता, आपको शुरू में बता दिया था कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए हॉलीडे और या सैटरडे संडे या किसी गेस्टेड हॉलीडे में काम करते हैं, उसके बदले में जो आपको दी जाती है दैट इज कंपेंसेटरी ऑफ। उसको 1 महीने के अंदर लेना पड़ता है, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप 1 महीने में नहीं लिए और उसके बाद ले रहे हैं तो स्पेशल परमिशन जेएस की चाहिए होती है। जीएस गवर्नमेंट नॉर्मली अंडर योर इंस्टीट्यूट जीएस नहीं होते हैं, बट जीएस रैंक में डायरेक्टर होते हैं, तो वी कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम हिम इफ वी आर अवेलिंग आफ्टर ए मंथ। और कंपेंसेटरी ऑफ में सारे एम्प्लॉयज को नहीं मिलेंगे, जो नॉन सुपरवाइजरी ग्रेड में है उनके लिए ही एप्लीकेबल होता है। वन साइंटिफिक स्टाफ और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दे कैन नॉट से दैट I have attended Saturday and Sunday and for that period I am claiming compensatory off. So remember that compensatory leave will be applicable only to non-supervisory staff. Next, what are special casual leaves? So special casual leave क्या होते हैं कि special casual leave are granted for some special purpose, like if somebody is are interested in sports, cultural activities, mountaineer expeditions, some for these such purposes, and for encouraging a staff to involve in such practices, such things, so government is allowing some leaves. अब अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज में शामिल है तो आपको पूरे कैलेंडर ईयर में साल भर में 30 डेज तक आपको स्पोर्ट्स के लिए मिलेगा। इसमें अभी कई कई आप डिपार्टमेंट में देखते होंगे कि वो ओलंपिक में या फॉरेन में भी स्पोर्ट्स के लिए खेलने जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि उनको हम स्पेशल कैजुअल लीव देते हैं साल भर में 30 डेज। इंजुरी रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट, अगर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, इंजुरी हो गया है, उस केस में भी उसको मैक्सिमम 30 डेज तक का लीव मिलेगा, दैट विल बी स्पेशल कैजुअल लीव। कल्चरल एक्टिविटीज, अगर कोई संगीत से, नृत्य से या किसी अदर चीज से जुड़ा हुआ है और वो किसी पार्टिसिपेट करता है किसी नेशनल इवेंट में, नेशनल और स्टेट इवेंट में, तो उसके लिए भी उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस, कोई पर्वतारोहण या इस भी तरह के ट्रैकिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है और वो जाते हैं, उन्हें भी दी जाती है। फैमिली प्लानिंग, 6 डेज फॉर मेन एंड 14 डेज फॉर वीमेन। वीमेन के केस में एक्सटेंड भी होते हैं। 7 डेज इफ वाइफ अंडरगोस एंड 1 डे इफ हस्बैंड अंडरगोस। ये आपको फैमिली प्लानिंग के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। फॉर टेकिंग अप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए somebody इज कमिंग फ्रॉम योर रीजनल स्टेशन, तो रीजनल स्टेशन से मेन हेडक्वार्टर में आने के लिए उसको जो ये लगेगा, जिस दिन एग्जाम देगा उसके लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। एसोसिएशन, यूनियन मीटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्टिविटीज, दोज हु आर रजिस्टर्ड। आपका एसोसिएशन भी, अगर आपने कोई एसोसिएशन अपने डिपार्टमेंटली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं एंड इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, then in that conditions a special casual leave will not be applicable. But if it is registered and it is authentic, means authorized association union is there, so for attending such meetings you will be allowed a special casual leave. Band, natural calamities, in certain conditions if road is blocked or some agitations is there in between your office and home, and if your residence is beyond 8 kilometers, under certain conditions special casual leave will be applicable. In certain time also we have also seen that some political parties are making dharnas on the road. They are making means jam, ट्रैफिक बंद हो गई, बस नहीं आ रही है, ऐसे कंडीशंस में वो स्पेशल कैजुअल लीव अलाउ होती है। इलेक्शंस के टाइम पे भी स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। बट अगर
But you have to you have to certify that you have casted your vote in that condition. If it is not that some in some portion of your constituency assembly election is there, and if you are not casting your vote and still claiming, that will not be applicable. Home guard training, territorial army camps, blood donation, there are several things are there for a special casual leave is admissible. Next, a special casual leave may be granted for apheres blood components such as just like in previous slide we have seen that for blood donation it is also applicable. So if not blood, if we are donating component of blood, for that also it is applicable if it is done on a working day or whole day basis and total 4 times in a year. क्योंकि ब्लड डोनेशन के लिए भी 3 महीने का सर्टेन टाइम रहता है. यू कैन नॉट डोनेट the component of blood time and again regularly, so there is a restriction of 4 times in a year. Next, combination. So how leave will be combined? No problem with RH and compensatory off. These can be combined, maybe combined with other leave, but CL or CL, but not both. Means you can combine compensatory off with RH CL, but not with other kind of leave. Production of medical certificate can be waived, maximum 3 days. Somebody means many are saying that if you are taking leave less than 3, then medical certificate is not mandatory. But some in some organizations it is applicable also. CL cannot be combined. Means just like CL and EL and CL cannot be combined with other regular leaves. It can be prefixed or suffixed with RH. Half day CL may be combined with regular leave. If not, just like suppose if you are coming after availing holidays, if you are coming back and you don't have any other leave in your account, in certain conditions, half day CL will be applicable, but only due to sickness on the next day. Other for other sickness or other compelling situations, compelling reasons. For other reasons, it will not be applicable. Next. Half day CL cannot be granted to officers in combination with leave already applied for. Means if you are already applied for the leave and if you are on the leave, so for that condition half day leave will not be means combined. It will be combined only for the sickness. Retrospective conversions. So I in the beginning also I told that normally leave cannot be altered when you have applied for the leave. So it means कि आप proper planning करके ही अपने leave apply किया. In certain organization, in some institutes, one practice is there कि आपको आपका administration director is saying कि whenever you have to proceed on leave, you plan well in advance so that an alternative or substitute can be arranged for your work. बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि आप 2 दिन पहले जाके डायरेक्टर को बोले या अपने एडमिन को बोले सर मैं 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए छुट्टी पे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दे विल बी सम इन सर्टेन कंडीशन, अरे कैसे होगा, ऐसे कैसे चला जाएंगे. सो टू अवॉइड सर्टेन सच सिचुएशंस दे आर मीन्स मेकिंग वन प्रैक्टिस कि जब भी किसी को लीव पे जाना है वो एक वेल इन एडवांस 15 डेज 20 डेज बैक प्लान करके ही जाए, सो दैट कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सब्सटीट्यूट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ताकि ऑफिशियल वर्क हेल्ड अप ना हो, ऑफिस का काम नहीं रुके. और इसीलिए क्या होता है कि हम लीव का काइंड जो है, क्योंकि हमें पता है पहले से कि आई हैव टू गो फॉर एलटीसी, आई हैव टू गो फॉर सम मैरिज पर्पस, आई हैव टू गो होम टाउन फॉर विजिटिंग माय रिलेटिव्स मदर्स और समबडीज. सो आप बेटर प्लान करके और जो भी आपके एप्लीकेबल लीव है अप्लाई करते हैं. सो अल्टरिंग इज नॉर्मली नॉर्मल केस में नहीं होता है, बट इन कंपेलिंग सिचुएशंस इफ यू डू रिक्वायर टू अल्टर द लीव, आपको चेंज करना है, तो आप 30 डेज के अंदर आप अपने लीव को चेंज कर सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग. कैन नॉट बी कन्वर्टेड आफ्टर रिटायरमेंट. अगर रिटायरमेंट हो गया तो नहीं कर सकते. रिटायरमेंट का आप जैसे आप अभी आपको बताया कि 30 डेज है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले किसी ने लीव अप्लाई कर दिया, रिटायरमेंट के बाद उसको पता चलता है कि हमारे अकाउंट में 300 EL नहीं हो रहा है, एंड देन ही इज प्लानिंग कि नहीं हम वो एक लीव जो हमने EL लिया था उसको CL ले लेता है या HPL ले लेते हैं और ये वाला हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल आफ्टर रिटायरमेंट.
you are normally ceases to all the government facilities what they are giving. Certain things are allowed with certain conditions, और हर एक के लिए अलग अलग है वो. नाउ विल कम इंडिविजुअली टू द अर्न लीव. अर्न लीव क्या है, मैं आपको बताया था शुरू में ही. तो अर्न लीव होता है कि नाम से ही क्लियर है कि अर्नड, यू आर अर्निंग द लीव फॉर योर ऑन पर्पस. और अर्निंग क्या होती है कि फॉर कंप्लीटेड मंथ्स के लिए 6 मंथ के लिए 15 डेज एडवांस में क्रेडिट होता है आपके अकाउंट्स में. अर्न लीव आर गेटिंग क्रेडिटेड इन योर अकाउंट इन एडवांस. जैसे अभी जनवरी चला है, 13 जनवरी, ऑन द 1 जनवरी 15 डेज ईएल आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो गया होगा. सो अर्न लीव इन एडवांस में क्रेडिट होता है 2 बार साल में. 15 डेज का है, साल में टोटल 30 डेज है. सीलिंग 300 प्लस 15 मीन्स 300 प्लस 15 से ज्यादा लीव एट एनी टाइम आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए. व्हेनेवर मीन्स आपका जनवरी या जुलाई आता है, उस टाइम तक जो भी आपके अकाउंट में लीव रहेगा बिफोर क्रेडिटिंग, वो 300 पे सीलिंग फिक्स कर दी जाएगी. एंड देन 15 डेज विल बी एडेड. 15 डेज ऐड करने के बाद आप जो भी लीव लेंगे पहले 15 डेज में से माइनस होगा, एंड आफ्टर देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम 300 सीलिंग. और आफ्टर 6 मंथ के बाद फिर देखा जाएगा कि आपका कितना बच रहा है. तो 300 और प्लस जो भी आपका आता है वो प्लस के रूप में ऐड कर दिया जाएगा. एट एनी टाइम 300 प्लस 15 से ज्यादा लीव आपके अकाउंट में नहीं रहेगा. ईएल का बता रहा हूं. क्रेडिट क्या होता है, 2.5 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ. इफ समबडी इज ज्वाइनिंग इन बिटवीन द मंथ, उस पीरियड के लिए उसको नहीं मिलता है. अगर आप पूरा कंप्लीटेड मंथ है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 2.5 ईएल. क्रेडिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ ईओएल अवेल. अगर मान लीजिए कि हम चूंकि ये तो एडवांस में क्रेडिट करते हैं, EL is being credited in advance. If somebody after crediting, if somebody goes on extraordinary leave, in that condition, extraordinary leave या डायजनल जो भी है, तो in that condition उसका जो है क्रेडिट को रिड्यूस कर देंगे 1/10 से. नेक्स्ट, लीव नॉट टू बी ग्रांटेड टू. किनको ग्रांट नहीं होगा, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन सस्पेंशन. जब सस्पेंशन में रहते तो उनको नहीं मिलेगा. टू whom a penalty of dismissal or removal or compulsory retirement has been imposed. डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट किसी एम्प्लॉय पे इम्पोज होने के लिए सर्टेन प्रोसीजर्स है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलानी पड़ती है. जस्ट इन 1 डे और इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक 1 मंथ हम किसी को डिसमिस नहीं करते हैं. देयर इज सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर्स. वो प्रोसीजर अडॉप्ट करने का और कंप्लीट करने के बाद एनी एम्प्लॉय, जस्ट क्या बोलो, ठीक है. So if somebody is dismissed or removed or compulsory retired from the government system, in that condition also leave will not be granted. Next, credit of EL during relevant half year. Just like suppose if somebody has appointed, and on appointment how it will be credited to the earned leave account. सो 2.5 2.5 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, ये आपको शुरू में बता दिया था कि 2.5 डेज कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए होगा. जिस महीने में वो ज्वाइन करता है अपॉइंटमेंट पे, अगर फर्स्ट डे को ज्वाइन किया है देन ही विल बी गिवन 2.5 डेज फॉर दैट मंथ. बट इफ ही ज्वाइंस इन मिडिल ऑफ द मंथ, उस मंथ के लिए उसको नहीं मिलेगा. तो जो कंप्लीटेड मंथ होगा उसी के लिए 2.5 डेज मिलेगा. रिटायरमेंट रिजिग्नेशन के केस में सेम कंडीशंस रहेगी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जो भी उसका कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ होगा उसने उतने के लिए उसको मिलेगा. डेथ के केस में क्या होगा, सेम कि डेट ऑफ डेथ वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा. डेट ऑफ डेथ जो भी है दैट विल बी काउंटेड एज ड्यूटी. और उस डेट तक अगर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है तो जो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है उसके उसमें हाफ डेज के हिसाब से मिल जाएगा. डिसमिसल रिमूवल सेम केस में भी, यहाँ भी जो डेट ऑफ डिसमिसल रिमूवल होगा तब तक के पीरियड के लिए पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ के लिए हाफ 2.5 डेज सीएल 2.5 डेज ईएल उनके अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा. नेक्स्ट, डिडक्शन रेट. डिडक्शन के लिए भी बताया कि अगर सपोज आफ्टर क्रेडिटिंग इन एम्प्लॉइज ईएल अकाउंट, इफ समबडी इज प्रोसीडिंग ऑन ईएल और ईओएल और किसी अदर वेज के लिए फॉर दैट डाइज नॉन अगर नहीं हुआ है उसका, उसमें क्या है कि 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ ईओएल उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा.
मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना दिन होगा? 300 डेज। सो लिमिट आपको बता दिया गया कि ईएल की लिमिट मैक्सिमम 300 डेज ही रहेगी कैरी फॉरवर्ड करने की। जो 15 डेज है वो 15 डेज हम एडवांस में जो क्रेडिट करते हैं वो इंडिकेट किया जाएगा। मैक्सिमम सैंक्शन एक बार में 180 डेज 6 मंथ तक की होगी। फॉर ग्रुप ए एंड बी, ईएल अप टू 300 days may be sanctioned at any one time if at least the period over 180 days is spent outside India। अगर बाहर में है तो 300 days तक रहता है। Account balance worked out at the end of each half year, number of days of unavailed joining time can be added to balance 300। जैसे ये तो EL आपका हो गया, but sometimes suppose you are being transferred to some other place, other locations, so in that condition joining time and other things will also be applicable on you। और joining time में अगर आपने ज्वाइनिंग टाइम जितना 10 डेज 12 डेज 15 डेज वॉट एवर इट इज एप्लीकेबल और 8 डेज, उसमें आपने जितना अनअवेल किया, आप 2 दिन के बाद ही ज्वाइन कर लिया, तो बाकी अगर 8 डेज का अगर अनअवेल है, दैट अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम will also be added to your EL account, so that also to be remembered। next, हाफ पे लीव क्या होता है? हाफ पे लीव जैसे कि ईएल में बताया 15 डेज एडवांस में क्रेडिट होगा, हाफ पे लीव में 10 डेज एडवांस में क्रेडिट होता है जनवरी जुलाई में, और वहां पे 2.5 होता है, यहाँ पे 5/3 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ यहाँ भी होगा। और अगर डाइजनॉन और यूएल के केस में 1/18 माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट, कंडीशन सेम देख लीजिए कि अगर कोई इन बिटवीन द मंथ इफ सम एम्प्लॉइज हैज ज्वाइंड और अपॉइंटेड, in that condition how his leave will be added to his account? So 5/3 days per completed calendar month। Suppose somebody has joined today on 13th January, so from 30th January to 31st January, this is not completed calendar month, he has joined in between in the month of January, so 5/3 days for the month of January will not be applicable for that employee, बट फ्रॉम द फर्स्ट फरवरी इट विल बी एप्लीकेबल। सो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये 5 महीना होगा, 5 मंथ्स के लिए 5/3 के हिसाब से उसका लीव एचपीएल हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके उसके लीव अकाउंट में ऐड कर देंगे। वहां कैलकुलेशन में जो राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। तो इन बिटवीन अगर कोई अपॉइंट होता है और इन बिटवीन द मंथ अगर वो ज्वाइन कर रहा है, तो हाउ हिज लीव्स विल बी एड्रेस 5/3 डेज पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। ज्वाइनिंग डेट 27/5 अगर है तो आपको मई का नहीं मिलेगा, जून का सिर्फ मिलेगा एक दिन लगभग, ऑलमोस्ट 1 मंथ का आप 5/3 into 1 कर लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आता है वो आप। if you have joined in the month of means May, and May is not completed, then you will be eligible only for the month of June। So 1 month into 5/3, get it calculate, and your HPL will be added to your account accordingly। In the case of retirement and resignation, same formula will be applicable for completed calendar month, 5/3 days will be applicable। In the case of death, dismissal, removal, same thing will be applicable। But you remember in the case of death, the date of death will also be counted as working day, and in the case of dismissal and removal also। Next, half pay leave, how it will be debited? 1/18 on dies none, twice the commuted leave. If somebody is taking, means in the second previous slide I told you that if somebody if we have credited half pay leave in advance, and after crediting leave in his account, if somebody goes on dies non extraordinary leave, then his leave account will be debited by 1/18 of the period for which he has been on dies non। If you are taking commuted leave, so twice the commuted leave will be deducted from half pay leaves। And just like suppose from Monday to Friday you are taking half pay leave along with medical certificate, so 5 days, if you are taking 5 days commuted leave, so twice the commuted leave means 10 half pay leave will be deducted from your account, and salary will not be made half। Leave not due, when we also I think leave not due will be taught in the next slides। So when no other leave are
admissible or no other leave are available in your account. In that condition, leave not due will be applicable, and that will be debited from half pay leave. With or without medical certificate, both are applicable under certain conditions that will be seen later. Leave salary, if you are taking half pay leave, then your leave salary will be half of the basic pay. That's why we all are commuting it. क्योंकि अगर हम हाफ पे लीव लेंगे हमारी सैलरी हाफ हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं, इसको कम्यूट कर लेते हैं, हम डबल हाफ पे का डबल कटा देते हैं, तो हमारी सैलरी पूरी की पूरी मिल जाती है. नेक्स्ट, कम्यूटेड लीव क्या है? नॉट मोर देन हाफ ऑफ एचपीएल. जब हम कम्यूट करेंगे तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना हमारे अकाउंट में हाफ पे लीव है उसका डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो when you are commuting, that will maximum will be half of the HPL, because 2 HPL एक कम्यूट करेंगे तो 2 होगा, तो जितना हाफ होता है HPL का उतना ही मैक्सिमम आप कम्यूटेड लीव ले सकते हैं. डिडक्ट डबल द अमाउंट फ्रॉम HPL, डिडक्ट हो जाएगा. ग्रांटेड विथ मेडिकल सर्टिफिकेट. जन्म नॉर्मली क्या होता कि कम्यूटेड लीव है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके करते हैं. इन सर्टेन कंडीशंस मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है. कहाँ नहीं पड़ेगी कि व्हेन somebody is on maternity leave and in continuation of maternity leave, अगर 2 महीने तक का उसको चाहिए तो वहां पे मेडिकल लीव की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट सी इज ऑन मेडिकल लीव. तो मेडिकल लीव पे है, निश्चित रूप से मेडिकल सर्टिफिकेट दिया ही होगा या कोई प्रूफ दिया ही होगा चाइल्ड बर्थ का. तो इफ सम प्रूफ इज ऑलरेडी देयर तो नो एडिशनल प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड, और उसको 2 महीने का कमिटेड लीव मिल सकता है. 60 डेज इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन. अगर चाइल्ड एडॉप्शन हुआ है तो उस केस में भी 16 डेज का मिल जाएगा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. 90 डेज फॉर हायर स्टडीज में अप्लाई अप टू 180 एचपीएल. तो ये आपको एक्सेप्शंस है. क्विटिंग सर्विसेज कन्वर्ट इनटू एचपीएल, मतलब एट द टाइम ऑफ क्विटिंग सर्विसेज समटाइम्स सपोज एक दो आप ये लेके चलो, इफ somebody is retiring and at the time of retirement he has not enough balance of EL at his account. हम ये पढ़े थे कि 300 डेज का EL इनकेशमेंट मिलता है, but at the time of retirement he has not sufficient number of EL in his EL account. Then in that condition he can convert some of the HPL. Recover excess payment उस केस में भी हम करते हैं. नॉट इन केस ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ. इल हेल्थ और डेथ केस में ये नहीं एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट, लीव नॉट ड्यू. जस्ट अभी हम देखा थे कि लीव नॉट ड्यू क्या होता है कि व्हेन देयर इज नो लीव इन योर अकाउंट. ये खासकर उन एम्प्लॉइज के लिए होते हैं दोज हु आर न्यू टू द सिस्टम. वी आर नॉर्मली ओल्ड इन द सिस्टम, वी हैव अप्रॉक्स मोर देन 200 EL in our account. सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इफ वी नीड 30 डेज 40 डेज 60 डेज अगर हमें EL की जरूरत पड़ी तो एट एनी टाइम वी कैन टेक with the satisfaction of the competent authority, or when competent authority is approving the leave. But when somebody has joins newly to the system, अगर न्यू ज्वाइन किया है तो उसको क्या है कि न्यू में 15 डेज आप EL देंगे, 10 डेज HPL देंगे, और कोई ज्यादा लीव होती नहीं, 8 डेज का कैजुअल लीव. अब्रॉड में कम्यूटेड लीव के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज when you are traveling abroad, other things are also applicable, like FCRA clearance and some other things. So you have to take permission. You can take, but you need to separate permission. Direct permission will not be enough. So we are on the leave not due. हम ये बता रहे थे कि if somebody has newly joined to the system, अगर सिस्टम में नया ज्वाइन है उसके पास ज्यादा लीव नहीं होता है, and when you are joining newly to the system, you may be having several lot of means engagements. किसी को एग्जाम देने जाना है, तैयारी करनी है, शादी में जाना है, रिलेटिव्स में जाना है, एंड इफ यू आर पोस्टेड मीन्स फार अवे फ्रॉम योर होम, तो घर जाने में भी 1 सप्ताह 10 दिन लग जाता है. ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं कि एम्प्लॉयज के अकाउंट में लीव नहीं रहता है. एंड if you don't have sufficient number of leaves in your account and still you need to proceed on leave for some or other reasons, in that condition you can ask your competent authority टू ग्रांट लीव नॉट ड्यू. आप उनको बोल सकते हैं कि सर हमारे पास लीव तो कुछ नहीं है, बट हम आपको वापस कर देगा. एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव लीव, बट इन द मंथ ऑफ जनवरी, when 1st January will come, 15 days EL will be added to my account,
and from that 15 days I will return this 10 days. So you give me that 5 days or 10 days EL at this time. और उसमें क्या होता कि वो लीव नॉट ड्यू कंसीडर करेंगे, जो लीव आपके पास उस वक्त नहीं है, बट स्टिल यू कैन बी सैंक्शन। और वो खासकर उसमें हम क्या करते हैं कि जो हम आपके पास एचपीएल रहते हैं उसके अकाउंट में हम एचपीएल के केसेस में हम उसमें कर देते हैं। तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन मेडिकल लिमिटेड टू 300 डेज इंटायर सर्विस इफ नो एचपीएल एट क्रेडिट, अगर नहीं है 360 डेज इंटायर सर्विस में मिलते हैं। टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, मेडिकल कंडीशंस पे आपको मिलेगा 1 year सर्विस एंड सपोर्टेड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में कहा मिलेगा, इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड एडॉप्शन लीव। चाइल्ड एडॉप्शन और मैटरनिटी लीव के इन कंटिन्यूएशन में बहुत सारे लीव एप्लीकेबल हो जाते हैं। लिमिटेड टू एचपीएल लाइकली टू अर्न। लाइकली टू अर्न कहने का मतलब है कि आप उतना कमा करके वापस कर देंगे। जो आप अभी एज ऑफ डेट यू डोंट हैव दिस मच लीव, बट इन कमिंग डेज और कमिंग जनवरी और जुलाई वॉट एवर इट इज, यू विल अर्न द लीव एंड यू विल रिटर्न। ओके, डेबिटेड अगेंस्ट फ्यूचर एचपीएल डेबिट होगा। रिजिग्नेशन के केस में क्या है, लीव नॉट ड्यू कैंसिल हो जाएगी व्हेन एवर यू रिजाइन्स इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ लीव नॉट ड्यू। लीव सैलरी रिकवर हो जाएगी अगर इफ यू आर रिजाइनिंग इन दैट कंडीशन, दिस एक्सरसाइज विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जस्ट लाइक यू से देन लीव विदाउट पे, उसमें सिर्फ यही होती है कि आपकी सर्विस कंटिन्यू मानी जाती है, ब्रेक इन सर्विस नहीं होता है, डाइज नन करके रेगुलराइज कर दिया जाता है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इफ देर इज नो अदर लीव इन योर अकाउंट, अदरवाइज ऑल्सो इफ अप्लाइड फॉर विथ और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, सॉरी कोई लीव नहीं है, इन दैट कंडीशन दिस विल बी एप्लीकेबल। और इसका पर्पस यही होता है कि आप मान के ये चलो कि इफ यू आर न्यूली इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम, आपके पास लीव नहीं है, कोई भी लीव नॉट ड्यू भी जो थी वो आपने अवेल कर ली, competent authority has considered that कि this guy will return up 10 days 15 days or whatever HPL you will earn in the coming year, that also है you have availed in advance। और ऐसे कंडीशन में अगर आपको और लीव की आवश्यकता है, you also need more leaves, then extraordinary leave will be allowed to you, but उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। that is लीव विदाउट पे। कंडीशंस फॉर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के कंडीशन में क्या है, 3 month इन ऑन ओकेजन पे, 6 month ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, इफ 1 year continuous सर्विस रेंडर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अर्लियर लीव। सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। बेसिकली यू थिंक कि अगर आपके पास कोई लीव नहीं है, लीव नॉट ड्यू से लेके सारे लीव खत्म हो गए, देन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल। और इसका सोल पर्पस यही होता है कि टू अवॉइड ब्रेक इन सर्विस, आपका सर्विस ब्रेक नहीं होगा, डाइज नन करके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सैंक्शन करके उसको पीरियड को रेगुलराइज कर दिया जाता है, आपको कोई उसके सैलरी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव क्या है कि मैटरनिटी लीव मैरिड और अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में भी मतलब 180 डेज तक मिलेगा लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के लिए। 45 डेज इन वन स्टेज और स्पेल में मिल सकती है विथ फुल पे। डेबिट, ये डेबिट नहीं होता है बिकॉज दिस इज नॉट, मतलब ये ऐसा लीव है जिसका अकाउंट, लीव अकाउंट सर्विस बुक में मेंटेन नहीं करना पड़ता है। जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मीन्स competitive examination or departmental examination, one question may also arise that what kinds of leave are there which are not debited in सर्विस बुक और लीव अकाउंट में। तो लीव अकाउंट में कौन कौन से लीव नहीं डेबिट होंगे, नहीं उसका क्रेडिट और डेबिट या हिसाब नहीं रखा जाएगा, तो दीज काइंड्स ऑफ आर लीव। मेडिकल लीव आपका हो गया, ये सॉरी मैटरनिटी लीव हो गया, इसका हम सर्विस बुक में एंट्री नहीं करते। सो वन रिकॉर्ड विल बी kept in personal file of the concerned employee that how much maternity leave he or she has availed or not, but उसकी सर्विस बुक में एंट्री नहीं होती है। क्वालिफाइज फॉर पेंशन एंड इंक्रीमेंट, दोनों के लिए क्वालिफाई होगा। 60 डेज कम्यूटेड लीव, एल&डी लीव विदाउट मेडिकल अप टू 2 years, ये उसमें कंबाइन हो जाएगा। सो मैटरनिटी लीव में आपको बेसिकली ये याद रखने हैं 180 डेज के लिए मिलेगा डेट ऑफ कंफर्मेशन से, व्हेन प्रेगनेंसी इज कंफर्म, एंड
या जो भी चाइल्ड बर्थ के बाद पहले भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम जो है वो 180 डेज और 2 बच्चों के लिए ही मिलती है। एंड फॉर मैरिड एंड अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोथ। An assistant who is yet to join duty on direct recruitment is likely to avail maternity leave. Maternity leave employees को मिलता है, they are yet to be an employee of the organization, so in that condition it will not be applicable. Once she will join the duty, from that day she will be employee of your institute and then only leave rule will be applicable. तो leave rule employee पे applicable होता है, सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सो सी विल नॉट बी इंटाइटल फॉर मैटरनिटी लीव। नेक्स्ट, paternity leave, just like maternity leave, paternity leave will also be there। मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है लेस देन 2 चिल्ड्रंस के लिए 15 डेज मिलेगा। वाइफ कन्फाइनमेंट और 6 महीने के डिलीवरी के 6 महीने के अंदर वो 15 दिन कभी भी ले सकता है, जब भी डेट ऑफ कन्फाइनमेंट हो गया है और 6 महीने के अंदर किसी भी टाइम पे 15 डेज ले सकता है। वो वन स्टेज में ही लेना होता है, आप तोड़ तोड़ के 5 दिन 4 दिन 2 दिन नहीं ले सकते। फुल पे मिलेगी आपको, क्वालिफाइज फॉर पेंशन इंक्रीमेंट, नॉट टू बी रिफ्यूज नॉर्मली। मींस जैसे हम पढ़े थे कि लीव शुड नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, बट certain leaves normally in normal case it should not be refused, because the purpose of this is to take care of child and means ward, दोनों को टेक केयर करने के पर्पज से लिया जाता है, तो नॉर्मल केस में रिफ्यूज नहीं होते हैं। बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस व्हेन नो अदर alternatives are there, no other arrangements are there, substitutes are not there, in that condition it can be curtailed, altered, और अथॉरिटी आपको बोल सकता है कि 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद ले लेना, जस्ट ये डीजीआर है ये खत्म हो जाता है, देन यू कैन proceed on leave. So certain things can be done, but in normal case it cannot be refused. 15 days for adoption of a child less than 1 year old within a period of 6 months from the date of adoption. ये भी आपको पैटर्निटी लीव मिल जाएगी 15 डेज इन केस ऑफ एडॉप्शन ऑल्सो। नेक्स्ट, चाइल्ड एडॉप्शन लीव फॉर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। जैसे आप शुरू में मैटरनिटी लीव के लिए देखा था कि 2 के लिए मिलता है, तो यू कैन नॉट क्लेम की 2 के लिए मैटरनिटी लीव ले लेते हैं, फिर बाद में 2 के लिए चाइल्ड एडॉप्शन लीव ले लेंगे, तो सर्टेन थिंग्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। मैक्सिमम आपको 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के लिए ही आपको मिलेगा फॉर एडॉप्टिंग चाइल्ड लेस देन 1 ईयर। चाइल्ड का एज भी 1 ईयर के नीचे होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1 ईयर, अदरवाइज दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। 180 डेज का मिलेगा, फुल पे मिलेगी, डेबिट नहीं होगा। सर्टेन these leaves are not debitable to your लीव अकाउंट। लीव अकाउंट में 2 ही लीव मेंटेन होते हैं, ईएल एंड एचपीएल, अदर लीव्स आर नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। ये क्वालिफाइज फॉर पेंशन इंक्रीमेंट के लिए होगा, कंबाइंड विथ अदर लीव्स अप टू 1 ईयर। 60 डेज आपको कमिटेड होगा लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, और मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को 15 डेज पैटर्निटी लीव भी मिलेगी चाइल्ड एडॉप्शन के केस में। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव। अब ये चाइल्ड एडॉप्शन पैटर्निटी मैटरनिटी के बाद चाइल्ड केयर लीव हो जाता है। चाइल्ड केयर लीव किसको मिलता है? वीमेन एम्प्लॉयज को मिलेगी एंड सिंगल मेल, मतलब जो सिंगल फादर होते हैं, सिंगल फादर को भी आपको चाइल्ड केयर लीव मिलेगा, पूरा का पूरा डेज जितने भी हैं उनको मिलेंगे, अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस। प्रायर अप्रूवल नेसेसरी है। ऑल काइंड्स ऑफ लीव, यू रिमेंबर दैट ऑल काइंड्स ऑफ लीव नीड्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। जो भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनकी मंजूरी के बाद ही आप छुट्टी पे जा सकते हैं। सो यू रिमेंबर दैट व्हेन एवर यू आर प्रोसीडिंग ऑन लीव, सैंक्शन ऑर्डर मस्ट बी इन योर हैंड, ये याद रखिएगा। बिना छुट्टी पे जाने, बिना ऑर्डर के छुट्टी पे जाने का अंजाम बुरा होता है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिन एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू इफ यू आर प्रोसीडिंग लीव विदाउट गेटिंग इट अप्रूव्ड। वो सीएल के केस में है, क्योंकि सीएल लीव नहीं है। इन दैट कंडीशन आप, अगर कोई इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी है और एनी पर्सनल इमरजेंसी इज देयर, you proceed on CL, you intimate your competent authority or reporting authority that due to certain conditions I am proceeding on leave and I will be on CL, ऐसा करके आप जा सकते हैं। बट इन ऑल अदर केसेस you should have approval in advance. Maximum 3 spell in a year, 6 spells in single mother. Separate performer to be kept along with service record. उसमें चाइल्ड केयर लीव में सर्विस रिकॉर्ड में सिर्फ एक रखना पड़ता है कि आपने कितने लीव ले लिए, क्योंकि टोटल 2 इयर्स का लीव
आपको एप्लीकेबल होगा। दोज आर मीन्स वीमेन एम्प्लॉयज और सिंगल मेल, जिनको भी चाइल्ड केयर लीव एप्लीकेबल है, 2 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है। सो 2 साल के लिए छुट्टी मिलेगी, तो देयर सम रिकॉर्ड मस्ट बी देयर इन द सर्विस रिकॉर्ड, नॉट इन सर्विस बुक बट सर्विस रिकॉर्ड में, जो उनकी पर्सनल फाइल है, पर्सनल फाइल में एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि फॉर विच पीरियड दे हैव टेकन चाइल्ड केयर लीव, और कितना अभी इनके पास बचा हुआ है। मे बी कंबाइंड विद अदर काइंड्स ऑफ लीव, वो भी होगा। लीव सैलरी क्या है, लास्ट पे ड्रॉन फर्स्ट 65 डेज का मिलेगा, और उसका बाद का रिमेनिंग पीरियड का 80% मिलता है। नेक्स्ट, additional to CCLs, an employee on CCL may be permitted to leave headquarter with the prior approval of competent authority। हाँ बताइए, जस्ट ए मिनट। So employee who are permitting who are proceeding on CCL must have approval of the competent authority। LTC may also be availed while on CCL। चाइल्ड केयर लीव में LTC भी अवेल की जा सकती है, बिकॉज somebody earlier also saying that कि जो LTC है वो चाइल्ड केयर, मतलब चाइल्ड केयर लीव के दौरान LTC नहीं ली जा सकती है, बट सम स्पेसिफिक चाइल्ड आर ऑल्सो देयर हु नीड्स, जिसको कि आप एक इस एनवायरनमेंट से अलग ले जाके एक नेचुरली हील करने के लिए भी एक ऑप्शंस होता है। सो लेटर ऑन इट वाज अलाउड कि आप LTC ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव पे। एन एम्प्लॉय ऑन CCL में प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रेवल प्रोवाइडेड अप्रूवल टेकन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, CCL 5 दिन से नीचे नहीं लेना होता है। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव, ये भी होता है कि वर्क रिलेटेड इंजुरी, ICR में ऐसी इस तरह की चीजें नहीं है नॉर्मल नॉर्मल केसेस में, बट सम सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जहां पे कि वर्क से रिलेटेड क्या होती है कि इंजुरी, मतलब काम करने के दौरान इंजुरी हो जाती है, या वर्क ही ऐसा है जिसकी वजह से क्या है कि सर्टेन इलनेस आ जाता है, तो ऐसे केसेस में भी वो लीव एप्लीकेबल होती है। उसमें सिर्फ यही देखना है कि जो इलनेस या इंजुरी जो भी हुई है, दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, लीव सैलरी फुल मिलेगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है। नेक्स्ट, स्टडी लीव। स्टडी लीव में क्या है, स्टडी लीव पर्पस और क्राइटेरिया क्या है, स्टडी लीव सबको नहीं मिलती है नॉर्मली। जो आपका स्टडी जिस चीज के लिए कर रहे हैं, दैट इफ दैट इज related to your work performance, then only it will be applicable। It may also be given to a study in India and outside India। अगर इंडिया में नहीं है, if some purpose is not available in India, that will for that purpose it will be applicable for abroad also। For a special course of study consisting of higher studies or a specialized training in a professional or technical subject, उसके लिए आपको मिलेगा। Having a direct and close connection with the sphere of duty, आपका जैसे मान लो कि somebody is working in finance and he wants to do MBA in finance, तो आपका अगर जिस चीज के लिए आप स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू योर वर्क परफॉर्मेंस, फॉर दैट पर्पस इट विल बी गिवन। उसमें भी सर्टेन कंडीशंस होते हैं कि आपका टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ वो भी अल्टर नहीं होना चाहिए एट ए टाइम 10% और सर्टेन परसेंटेज इज देयर, उससे ज्यादा को हम स्टडी लीव पे नहीं भेज सकते हैं। बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज सेंडिंग यू फॉर स्टडी ऑन इट्स ओन एक्सपेंसेस। सो गवर्नमेंट विल सर्टेनली विल एक्सपेक्ट कि आप आपका डिपार्टमेंट का काम भी हैम्पर नहीं हो, और आप जब उस स्टडी के बाद जब आएंगे तो यू विल give your more to the department, or for that only the government is allowing for a study leave। A study is connected with the framework or background of the public administration should be approved by the competent authority and on return of government servant to submit a full report। study leave के बाद आने के बाद पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। and in some institutes when somebody is coming back from a study leave, they have to present entire report। वो पूरा रिपोर्ट मीन्स कमेटी के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस स्टडी लीव में। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, 2 साल के लिए आपको इसमें मिलेगा।
Purpose and criteria could be for a course of training or of study in which attending academic or semi-academic courses may not be necessary, but certified to be defined advantages to the government in public interest and related to sphere of the duties. ये दो कंडीशंस है जिसमें कि आपको मिलेगा। एक कंडीशन ये है कि डिफाइंड एडवांटेज टू गवर्नमेंट, जो आपका कोर्स है जिस चीज के लिए करेंगे वो आपका कोर वर्क का होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना है, एंड related to a sphere of the duties. These are the certain criteria for granting of study leave. Also, for studies not closely and directly related to a sphere of duties, but capable of widening mind to improve capabilities as civil servant. Sometimes, just I gave you an example that somebody, some UDC, LDC or assistant, whatever it is, if you are working in finance division or if you are working in legal cell, and if you want to take a study leave फॉर MBA फाइनेंस या कुछ फाइनेंस में ही हायर स्टडीज के लिए आप लेना चाह रहे हैं, सो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन यू। बट इन अदर कंटेक्स्ट कि इफ यू आर नॉट रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डोमेन जिसमें आप पढ़ना चाह रहे हैं, वो दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट वाइडली रिलेटेड है, वाइडनली, और पढ़ने के बाद आपका माइंड वाइडन होगा और आप अपनी कैपेबिलिटीज को मच मोर वे में आप गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट सिस्टम्स को देंगे। ऐसे कंडीशंस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जस्ट सपोज समबडी इज एन एडमिनिस्ट्रेशन और वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसका टोटल वर्क इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, बट इफ ही वांट्स टू टेक स्टडी लीव फॉर फाइनेंस रिलेटेड थिंग, so it can also be applicable because after studying finance he will contribute more in finance division also. So certain restrictions are that can be applicable. Next, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? स्टडी लीव कैन बी सैंक्शन बाय द फॉलोइंग अथॉरिटीज: मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, CAG। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका है। आपके इंस्टीट्यूट में स्टडी लीव डायरेक्टर सैंक्शन कर सकता है और हायर केसेस में वो हेडक्वार्टर जाके वहां पे सैंक्शन होती है। एलिजिबिलिटी क्या है? परमानेंट होना चाहिए। टेम्पोररी केस में इफ यू आर ऑन प्रोबेशन, सपोज सम newly recruited employees have joined and they are on probation for a period of 2 years. So within 2 years, 2 साल के अंदर, जब 2 साल के अंदर हो और till the time when they are on probation, वो परमानेंट नहीं होंगे तब तक उनको नहीं मिलेगा। कंप्लीटेड प्रोबेशन, जब उनका प्रोबेशन क्लियर हो गया हो, कंटिन्यू सर्विस ऑफ 5 years और एग्जीक्यूट्स बॉन्ड टू सर्व फॉर 3 years, नॉट टू रिटायर विद इन 3 years ऑन एक्सपायरी। जब उनका स्टडी लीव खत्म होगा तो मिनिमम 3 years के लिए उनको ऑफिस आके ज्वाइन करके सर्विस देनी पड़ती है। इफ समबडी इज नॉट गिविंग a period of 3 years after the expiry of study leave, they will have to return the leave salary। जितना सैलरी उस पीरियड के लिए मिला है उसको वापस करना पड़ेगा। सो जनरली इफ somebody is left with only 3 years of service, ऐसे केसेस में हम स्टडी लीव देते ही नहीं। और अगर चूंकि उसको स्टडी लीव करके आने के बाद 3 साल का सर्विस उसको अपने ऑफिस में देना पड़ेगा। इफ somebody has left the service less than 3 years, ऐसे केसेस में उसको हम नहीं देंगे। Next, or people are from engineering background can do the MA in public administration or MBA finance. They can do, no issue, but competent authority has to decide whether you will means you will give your 100% or the study in which you want to take a study, that certainly will widen your means working ambience and working proficiency. In that condition it will be applicable, आपको मिल सकता है, बट वो कंपिटेंट अथॉरिटी को वो चीज देखना है। क्वांटम कितना मिलेगा? मैक्सिमम 36 months मिलेगा एंड इन वन स्पेल में या मींस स्ट्रेच में 24 months रहता है। सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए 36 month है, अदर्स के लिए 24 months, मतलब 2 साल की सर्विस आपको मिलेगी। कैन बी कंबाइंड विथ अदर लीव। अगर आप 2 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो आप अपना लीव लेकर के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कंडीशन सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, आपको वही है कि द स्टडी, जो फील्ड जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं, दैट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो मतलब इट शुड नॉट बी इन ए पर्सनल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू एग्जीक्यूट द रिक्विजिट बॉन्ड, आपको एक बॉन्ड भर के ऑफिस में देना पड़ता है कि इन केस इफ आई लीव द गवर्नमेंट सिस्टम बिफोर द मीन्स एक्सपायरी ऑफ 3 years, सो आई विल रिटर्न द अमाउंट। जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके होगा वो आप रिटर्न करेंगे, ऐसा आपको
एक बॉन्ड भर के ऑफिस में देना पड़ता है, क्योंकि यू विल बी पेड, आपको डीए भी मिलेगी, बेसिक पे भी मिलता है, एचआरए भी मिलती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी लीव। तो आपको यूं समझिए कि आपको घर बैठ के इतना पैसा अगर गवर्नमेंट दे रही है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी लीव यू आर नॉट ज्वाइनिंग टू द गवर्नमेंट सर्विस, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड दे आर टेकिंग ए वन बॉन्ड कि whenever you will return after completing the leave, after completing a study leave, you will have to work for at least 3 years। और अगर आप 3 years काम नहीं करते हैं, सपोज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लीव, अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो ऐसे केसेस में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, और आपको कंप्लीशन रिपोर्ट वहां पे जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नॉन कंप्लीशन अगर होता है तो फेज टू कंप्लीट स्टडी, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फेज टू कंप्लीट स्टडी, रिजाइन विदाउट रिटर्निंग, रिटर्न्स एंड रिजाइन विद इन 3 years, अगर ये तीनों केसेस कोई भी होते हैं, तो ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड लीव सैलरी विल बी रिकवर्ड, एंड फॉर दैट ओनली यू हैव टू सबमिट एंड एग्जीक्यूट, you have to execute one bond. No recovery is permitted to resign on medical ground or abscond in autonomous statutory body। वो मेडिकल ग्राउंड के केसेस में अगर ऐसा होता है, when the situation, we can say when the situation is beyond the control of the employee, in that condition recovery will not be permissible, but otherwise सारे permissible हो जाते हैं। सपोज एग्जांपल आप ये लेके चलिए कि somebody has taken a study leave, वो लीव लेके गया, वापस आने से पहले ही वो आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ इलनेस कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इन इन सर्टेन कंडीशन, इन दैट कंडीशन हाउ ही विल रिटर्न। तो ऐसे अगर कंपेलिंग सिचुएशन होता है, इन दैट कंडीशन रिकवरी विल नॉट बी मींस एडमिसिबल, इन अदरवाइज उसको पूरी रिकवरी करनी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट। अलाउंसेस ड्यूरिंग लीव, स्टडी लीव में क्या क्या अलाउंसेस मिलेगा? डीए मिलेगा, एचआरए क्या होता है 180 डेज तक फुल मिलेगा, मतलब बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ लीव जो भी था मिलेगा, और उसके 180 डेज के बाद सब्जेक्ट फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट। कन्वेंस अलाउंस नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव, हॉलीडेज प्रीफिक्स सफिक्स और टू लीव इसमें नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट कहने का मतलब होता है कि इफ समबडी इज रिटायरिंग, अगर वो रिटायरमेंट के नजदीक है, तो रिटायरमेंट के नजदीक में क्या होता है कि एम्प्लॉय हैज टू सेटल सम ऑफ द ऑब्लिगेशंस, या कुछ उसको घर बनाने हैं, या जैसे गवर्नमेंट सिस्टम में रह रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है, वो बाहर जाके अपना रहेगा, बाकी जितने भी उसके सोशल ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, उसको लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट भी दी जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ ईएल ड्यू नॉट एक्ससीडिंग 300 टुगेदर विथ एचपीएल, shall not include EOL, EOL नहीं मिलेगा उसको। इफ इन फॉरेन सर्विस विथ अप्रूवल ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन सर्विस करने का मतलब कि विदेश में नहीं है, मतलब अपने देश के अंदर ही, इफ ही इज ऑन अनदर डिपार्टमेंट उसको फॉरेन सर्विस बोलते हैं। तो उसमें जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसके परमिशन से मिलेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट के परमिशन से नहीं। मस्ट इंक्लूड डे ऑफ रिटायरमेंट, डे ऑफ रिटायरमेंट वो हमेशा इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट। लीव सैलरी क्या होता है, आप पूरे में देख लीजिए, समरी चार्ट है। ईएल में लीव सैलरी क्या होगी कि ईएल में जब आप लीव पे प्रोसीड करें, एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग लीव, व्हाट यू आर गेटिंग दैट विल बी योर लीव सैलरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एचपीएल, सॉरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईएल। एचपीएल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसलिए हम उसको कम्यूट कर लेते हैं, तो कम्यूट करने में डबल हो जाएगी, तो हाफ का डबल फुल, मतलब फुल मिल जाती है। कम्यूटेड लीव में इक्वल टू लास्ट पेड ऑन। लीव नॉट ड्यू में सेम एज एचपीएल, क्योंकि वो एचपीएल से ही माइनस करते हैं। ईयूएल में बोल दिया कि ईयूएल में कुछ नहीं मिलता है, ईयूएल इज जस्ट फॉर कंटिन्यूइंग ऑफ योर सर्विस, उसका और पर्पस नहीं होते, लीव विदाउट पे होता है। लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट में क्या है कि एज एडमिसिबल फॉर ईएल एंड एचपीएल। मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव सीसीएल में आपका पूरा मिलता है। सीसीएल केस में क्या है, फर्स्ट ईयर में फुल मिलती है एंड सेकेंड ईयर में 80% हो जाता है, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। लीव इनकैशमेंट क्या होता है कि लीव इनकैशमेंट इज मीन्स इनकैशिंग और लीव, आपका अकाउंट में जितने भी लीव है, जस्ट लाइक व्हाट वी आर सेइंग 300 EL, सो इफ यू आर गेटिंग इन कैश, तो वो 300 का जो मिलेगा उसको इनकैश हो गए। व्हेन नेक्स्ट हम कब करेंगे इनकैशमेंट ऑफ लीव, तो 2 टाइम्स पे होता है कि व्हेन एवर यू आर गेट गोइंग ऑन एलटीसी,
तो एलटीसी पे हम जब भी जाते हैं पूरे सर्विस पीरियड में 6 टाइम एलटीसी आपको एलटीसी पे लीव इंकेसमेंट मिलेगी 10 डेज ईच टाइम, और टोटल इंटायर सर्विस में 60 डेज का ईएल इंकेसमेंट करा सकते हैं ड्यूरिंग लीव ट्रेवल कंसेशन। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके अकाउंट में जो भी ईएल बचा हुआ है मैक्सिमम 300 सीलिंग है, अप टू 300 आप पूरा उसको इनकेस करा सकते हैं। अगर रिजिनेशन के केस में भी जो आपके अकाउंट में है वो कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कैश इक्विवेलेंट, तो आपका बेसिक पे डीए आएगा और उसको आप 30 से डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ ईएल एट द क्रेडिट मीन्स 30 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1 डे का आपको सैलरी निकालना है, तो 1 डे का निकाल के जितना क्रेडिट ईएल है उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कैलकुलेशन आएगा लीव इनकेसमेंट का। ओके, सेम थिंग इज देयर, उसमें सब्जेक्ट टू सीलिंग 300 का है। अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट somebody डजंट हैव 300 ईएल इन हिज अकाउंट, तो जितना शॉर्ट पड़ता है उतना हम एचपीएल ले लेते हैं, बट उस एचपीएल को कम्यूट नहीं करते हैं, वहां पे उस एचपीएल का हाफ ही हम कैलकुलेट करके उनको देंगे। मीन सपोज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट somebody हैज 290 ईएल, तो 290 ईएल का इनकेसमेंट दे देंगे, और जो 300 में शॉर्ट पड़ रहा है 10 डेज, तो 10 डेज हम एचपीएल से लेंगे। 10 डेज एचपीएल मतलब 5 डेज का फुल सैलरी हम उनको देंगे। तो इन दैट कंडीशन एम्प्लॉय विल बी इन लॉस फॉर 5 डेज सैलरी। तो ये होता है, तो इसलिए दोज हु आर एट द टाइम एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, उनका ये टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 300 ईएल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डे ऑफ रिटायरमेंट तक 300 हमारे अकाउंट में बने रहे, सो दैट विल नॉट बी इन लॉस। नेक्स्ट, कैजुअल लीव इज एक जस्ट बैक जाइए। हाँ, सो लीव इनकेसमेंट आप ये पूरा समझ गए, इसमें किसी को कोई अभी तक इशू आई थिंक है तो अब बताइए। सो अभी मतलब एक ब्रॉड व्यू में हमने लीव को इलेबोरेट किया, द बिकॉज वी ऑलरेडी स्टार्टेड सेशन सम 10-15 मिनट्स लेट, और कुछ बीच में इशू भी आ गए थे। सो ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड, अब हमने उसमें कुछ कुछ एक उसी लीव के बेस पे थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए, जस्ट विल टेक 2-3 मिनट्स। और आप वहाँ स्क्रीन पे देखिए और चैट बॉक्स में जस्ट आप रिप्लाई करिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हम बताएं तो थोड़ा एटलीस्ट 10-15 और 20% टेक होम आपका हुआ है। सो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दैट ओनली आई विल गिव सम ऑफ द MCQs, and apart from that also if you are preparing for the competitive examination, so आपका FRSR पेपर 4 में आपके लीव के 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, जस्ट लाइक एक तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट काइंड्स ऑफ लीव आर देयर, जो कि आपका लीव अकाउंट में डेबिट नहीं होता है, उसके अकाउंट फॉर नहीं होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। सम आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दिया जाएगा कि किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में इतना लीव है, इतना एचपीएल है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हाउ मच इनकेसमेंट दे विल गेट। तो these things to be kept in mind while you are preparing for competitive examination, or you are dealing day to day work in your own office, ये सारी चीजें आपको देखनी है। लीव में सबसे बड़ी बात जो याद रखने की है, द फर्स्ट थिंग इज दैट लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, वो आपका अधिकार नहीं है, अनलेस द अप्रूविंग ऑथोरिटी अप्रूव्स और ही क्लियर्स गिविंग ग्रीन सिग्नल टू प्रोसीड ऑन लीव, तब तक आप लीव पे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर सीएल। सीएल इज ए नॉट फॉर्म ऑफ लीव, सीएल लीव नहीं होता इसलिए हम चले जाते हैं। अदर सारे केसेस में यू शुड हैव सैंक्शन ऑर्डर, अप्रूवल ऑर्डर इन योर हैंड बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी आपको छुट्टी पे लेनी है अप्रूवल लेके जाइए, अदरवाइज आप एट एनी टाइम यू कैन हैव टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शंस। सो अगर और क्वेश्चंस कुछ आपके मन में आएगा तो आप पूछिएगा। मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए तो एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, एंड जस्ट यू चैट बॉक्स में आप बताइए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कैजुअल लीव इज जनरली लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ, कैजुअल लीव मैक्सिमम कितना मिल सकता है, हाउ मेनी? somebody is saying 5 days, 8 days, 8 days भी ओके, 5 days नहीं है, 5 days वन स्टेज में 5 days होता है। वो 5 days जिन्होंने 5 days लिखा है, आई थिंक उनका कंसेप्ट ये वो कंसेप्ट है कि एक बार में कितना मिलेगा, तो एक बार में किसी एम्प्लॉयज को 5 days ही मिलता है, बट इन एक्सेप्शनल केसेस 8 days भी मिल जाती है। सो
और जिन्होंने 5 डेज ये सोच के दिया वो भी सही है। 8 डेज हम देते हैं, 12 डेज जो स्पेशल एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए मिलता है, डिसेबल पर्सन के लिए। नेक्स्ट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्न लीव दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड एट एनी टाइम कितना हो सकता है? हाउ मच? ओके ओके ओके, गुड। ओके, तो याद हो गया। नेक्स्ट। 3-4 और क्वेश्चन होंगे। हाफ पे लीव इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ, पर ईयर कितना मिलता है हाफ पे लीव? 20 days. ओके, 10 डेज नहीं है, जिन्होंने 10 डेज लिखा है दैट इज नॉट 10 डेज। हाफ ईयर में मिलता है, फुल फुल ईयर में 20 डेज मिलेगा। नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर चाइल्ड बर्थ, कौन सा मिलेगा? ओके ओके, Maternity leave. यस यस Maternity leave. यस, ओके, गुड गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ, ओके ओके ओके, नाइस। नेक्स्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज, ये क्या है? ओके 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 ओके, नेक्स्ट। ओके ओके, सब सही है। नेक्स्ट वन। Which authority is competent to sanction leave under CCS Leave Rule 72? इसमें कई लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी लिख रहे हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डेलीगेटेड अथॉरिटी। इसमें तो थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि इसमें क्या होता है कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर दिया गया है काउंसिल से वो डायरेक्टर को दिया गया है, तो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ एडमिन को दिया गया है, दैट इज डेलीगेटेड अथॉरिटी होते हैं। बट अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डेलीगेटेड अथॉरिटी इसका राइट आंसर होगा। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट वन। Which type of leave cannot be combined with any other kind of leave? Okay, okay, good, good, good. CL will be there. Next one. A study leave under CCS leave rule is granted for a maximum period of, स्टडी लीव 24 मंथ्स के लिए होगा। अगर 36 में क्या होता है कि उनको अपना लीव लेना पड़ता है। सो स्टडी लीव विल बी फॉर 24 मंथ्स मैक्सिमम। नेक्स्ट वन। Which leave is debited at double the rate of half pay leave? Okay, okay, fine, good, good. Next one. Okay, so I have concluded my sessions. So anything is you required